میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور اگر ابھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو یہ اطلاع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ توصیف الرحمان راشدی کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دمام میں، اور انہوں نے دعا کی، اپیل اور درخواست کی ہے اس امید پر کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری اہلیہ کو بھی یاد رکھیں، وہ بھی کینسر کی بلکہ آج وہ ایک جگہ کسی ایک فورم پر 5-7 منٹ کی انہوں نے گفتگو کی ہے، اپنے کینسر کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اور وہ کس طریقے سے انہوں نے فائٹ کر کے یہاں پر پہنچی ہیں۔ میری خواہش ہے سلیو آف اللہ کہ میں انشاءاللہ تعالی انہیں لے کر آؤں گا یوٹیوب پر اپنے چینل پر، اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے سفر کا ہمیں بتائیں کہ جب کینسر شروع ہوا اور کینسر کیا علاج انہوں نے کیسے کروایا، اور کینسر سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور کینسر بیمار اگر کوئی کینسر کا ہے تو آیا اس کو ایسا کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ میری بیگم کی تقریر سنیں، اگر وہ راضی ہو گئی تو میں یہاں لے کر آؤں گا آپ کے ساتھ ان کو گفتگو کرواؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آئیں تو آؤٹونٹی واٹ از دس ارشاد سیٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آڈیو نہیں آ رہی ہے کیا؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ پلیز مجھے شیئر کر دیں کہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، مجھے بتائیں پلیز، تاکہ میں تقریر کر رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے فائدہ کیا ہے۔ حافظ محمد اسامہ، السلام علیکم، جب نماز، جی ہاں سبسکرائب کر چکے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے آ رہی ہے، آکی آ رہی ہے۔ تو آکی میں یہ چاہ رہا تھا کہ راشدہ کو میں اپنی بیگم کو، خورشیدہ نور کو لے کر آؤں، اور وہ یہاں پر آ کر اپنے جو کینسر کا ان کا سفر رہا ہے اس میں وہ شیئر کرواؤں، کیونکہ یہ کینسر اویئرنیس کا پورا مہینہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کینسر اویئرنیس میں بھی ہم لوگوں کا ایک اچھا کردار ہونا چاہیے۔ پلیز آنٹی کو ضرور لے کر آئیں۔ اوکے، آپ مجھے وائس میسج کریں یا کال کریں نیلوفر کہ آنٹی آپ کو آنا ہوگا، تاکہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر وہ اپنی سپورٹ مجھے دیں گے تو میں میسج کر کے کم از کم اہلیہ کو کہوں گا کہ آپ کو بھی لوگ، آپ سے بھی لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، اور وہ آئیں گی نا، جب آئیں گی تو ان کو آج کل چونکہ وہ کیمو تھراپی سے گزری ہیں، نیلوفر ایکچولی کیمو تھراپی بہت عجیب و غریب دوائی ہے، عجیب و غریب کیمیکل ہے، اور اس کیمیکل سے بہت سے باڈی پر اثر پڑتا ہے۔ تو میری اہلیہ کے ان کی تھروٹ پر اثر پڑا ہے، ان کے گفتگو کرنے پر اثر پڑا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ آئیں گی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا لائیو نہیں، لائیو آپ کو لے کر آؤں یا ویسے ہی بتائیے، میں میرا خیال لائیو لے کر آؤں یا ریکارڈ کر دوں، ان کو ریکارڈ کر دیتا ہوں میرا خیال سے ایک ویڈیو اپنے پرانے چینل پر، جو ہمارا بڑا چینل ہے جس پر 5000 سبسکرائبر ہیں، اور اس چینل پر پلیز آپ ہمیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے، تاکہ ہم دوسروں تک اپنی آواز کو بترجے لائیو لے کر آئیں، لائیو لے کر آؤں، مجھے مروانا ہے، یا اللہ، یا مدام، I don't know if she can come. آپ مجھے ٹرائی کروں کیا میں، بتائیں۔ جیسے آپ چاہیں، لائیو لے کر آئیں آنٹی کو پلیز، لائیو۔ اوکے، 1 منٹ انتظار کرو، ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر وہ آ گئی تو ٹھیک ہے، کیونکہ کئی مرتبہ وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ 1 منٹ نیلوفر۔
लाइव चल रहा है, लाइव आ रहा है। इंशाल्लाह आ रही हैं, मेरी बेगम मान गई हैं, आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हालांकि मुझे इंशाल्लाह आ रही हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस जो कैंसर की उनके एक्सपीरियंस में रहा है, इंशाल्लाह ओके। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरी वाइफ का कैंसर एक्सपीरियंस के बारे में या कैंपेन जो चला रहे हैं आजकल, वो आप देखना चाहती हैं तो लाइव आ जाएं इस वक्त, जो लिंक मैंने आपको भेजा है। आ जाओ, कोई बात नहीं। ओके, गिव मी 5 मिनट्स ओनली। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ शॉर्ट नोटिस पर कि मेरी अहलिया अब लाइव आने वाली हैं। जो लिंक आपके पास आया है वो कैंसर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। ओके, जी इरशाद भाई। वालेकुम सलाम। अखिल भाई, जी भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो एक्सीडेंट हुआ उसको सुन के बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनको सब्र दे। आमीन 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 आमीन। अच्छा, और एक बात, ये जो नूर तौहीद का जो लाइव का नोटिफिकेशन है, एडवांस नहीं आ रहा है, ऑटो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैं चैनल का आ रहा है। मैं देखता हूँ आप भेजने के बाद आता है, लेकिन ऑटो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आपने तो आ जाता है। आप अलाउ कर देंगे तो इसका भी आएगा। नहीं, अलाउ कर दिया हूँ मैं। नोटिफिकेशन दोनों का अलाउ हो रहा है, ओके सब्सक्राइब भी है, ओके, लेकिन इसका नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इस वक्त मेरी वाइफ आ चुकी हैं और वो आपसे मुखातिब होने वाली हैं। आप आ जाइए लाइव। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। एक मिनट, मैं ये अस्सलाम वालेकुम। मेरी वाइफ इस वक्त मुखातिब होने वाली हैं चैनल पर लाइव। अगर आप उनको देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कैंसर का जो उनका सफर रहा है, तो आप जरूर लाइव आ जाएं इस लिंक पर। एक मिनट और मैं दे दूं एक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वाइफ चैनल पर लाइव आ रही हैं इस वक्त, और जिस लिंक को मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में शरीक होना चाहते हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वाइफ आ चुकी हैं लाइव, और आप अगर कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में शरीक होना चाहते हैं तो लाइव हमारी इस आज के सेशन का हिस्सा बने। लिंक आपके पास पहुंच चुका है, आ जाइए, फौरन देखिए इस चैनल को। ओके, लाइव अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल के साथ अवेयरनेस कैंपेन, जो कैंसर अवेयरनेस कैंपेन है, मेरी वाइफ अब कुछ देर के बाद ही अपने तजुर्बात को और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी। आप अगर कोई कैंसर के बारे में जानना चाहता होगा तो वो कॉल भी कर सकता है। ओके, अब हमारे दरमियान मौजूद हैं ये मोहतरमा, यहाँ लगा लो, कोई बात नहीं, चलेगा ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर खुर्शीदा नूर इनका नाम है, और ये पहली मर्तबा लाइव आपसे गुफ्तगू करने के लिए आई हैं। दरअसल लाइव लाने का इनको मकसद ये रहा है कि एक अभी प्रोग्राम चल रहा था जो इंटरव्यू इनका ले रही थी, क्या नाम है उर्दू का, पढ़ो एंड पढ़ाओ। तो पढ़ो एंड पढ़ाओ में उन्होंने जाकर वो एक जूम पर
गुफ्तगू रही है, और जूम पर जब उन्होंने कैंसर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे तो उसमें जो क्या शेयर किया है वो मेरी वाइफ आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगी। कहेंगे तभी तो जी बोलूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बता दीजिए मेरी अहलिया की आवाज आई है या नहीं आई है आपको? अगर सलाम आप तक पहुंचा है तो प्लीज वालेकुम अस्सलाम लिख दीजिए वहां पर, ताकि हमें पता चल जाए कि आप तक आवाज पहुंच चुकी है। इस पर आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, अंदर पकड़ ले, क्या हुआ? यहाँ लगा दो। हाँ हाँ यहाँ लगा दो। आवाज आ रही है, अमीना कह रही है आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज। ओके। अब अमीना अगर रावलपिंडी तक आवाज पहुंच रही है, पाकिस्तान तक आवाज पहुंच रही है, सब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। लुबना ने वालेकुम अस्सलाम कहा है। अब आप बोलेंगे तो मुझसे नहीं बोला जाएगा फिर। ओके, मेरी वाइफ इस वक्त लाइव है चैनल पर और वो कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन रही हैं। बराह करम आप लाइव आकर देख लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं जो अभी शेयर करके आ रही हूँ, सब लोगों से बातें की हैं, तो कुछ जल्दी में भी थे हम लोग, तो मैंने यही बताया है कि जब मुझे इसका पता चलता रहा, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि ये कैंसर ही है। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसमें से ब्लड निकलने लगा, तो मैं डॉक्टर के पास गई जो रूटीन चेकअप के होते हैं। तो मैं उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें, अल्ट्रासाउंड कराइए और मेमोग्राम वगैरह जो भी है आप कराइए, फिर पता लगेगा। तो सब चीज़ों का करवा के बायोप्सी, मेमोग्राम, फाइन नीडल, ये सारी चीज़ें कराने के बाद मैंने, और जब मुझे पता लगा हाँ मुझे कैंसर ही है, लेकिन मैंने कभी ना मैं रोई उस वक्त, ना मैंने कभी दिल छोटा करा, सिर्फ यही कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब पता ही लग गया भाई अब क्या है, अब तो अल्लाह की तरफ ही लौटना है। और मैंने इसको हमेशा यही कहती हूँ कि ये मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं अपने रब की इबादत कर सकूँ। ये मैं यहाँ तक आई हूँ, इतना लंबा सफ़र, मेरी 8 कीमो हुई, 15 रेडिएशन हुई, और क्या कहते हैं 17 क्या कहते हैं वो लगी मेरे नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, अभी भी 1 महीना हुआ है। एक दवाई लगती है 6 महीने के बाद एक, तो वो भी लग गई। लेकिन मैंने कभी इसको इस वे में नहीं लिया कि मैं बीमार हूँ, मैं कैंसर की मरीज हूँ। मुझे कहना भी भाई दुख तो दुख ही है ना, कैंसर हो, हार्ट का कुछ मसला हो, किडनी का मसला हो, मौत आनी है तो किसी चीज में भी आएगी। तो मैंने इसको कभी इस वे में नहीं लिया कि ये मैं कैंसर की मरीजा हूँ, या मैंने अपने शौहर को भी ये दुख नहीं दिया कि मैं कैंसर की मरीज हूँ, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती। ये नहीं मैंने कहा। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ कि मैं अच्छी हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी शुक्रगुजार हूँ रब की कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना सब कुछ अता किया है, सेहत भी है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ी कमजोरी तो जाहिर है, इतना सख्त इलाज है इसका कि बयान नहीं कर सकते। एक साहिबा भी बता रही थी कि वो तो डिप्रेशन में चली गई थी इतने सख्त इलाज के अंदर, तो वो फिर, लेकिन मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है घर के काम भी करती हूँ, अपने शौहर की जहाँ तक होती है खिदमत भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को अगर मुझसे कुछ पूछना हो, या इलाज वाकई में इसका सख्त है और इसके अंदर बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। जब कीमो लगती है तो आप कम से कम आपको 20-21 दिन लगते हैं सुधरने में, तो आपकी फिर दूसरी कीमो आ जाती है। लेकिन मैं उसमें भी सही रही, बिल्कुल अच्छी रही। 4 कीमो तो मैंने बर्दाश्त, किसी को ये भी नहीं महसूस होने दिया कि मेरी कीमो चढ़ रही है। लेकिन 5वीं कीमो में मैं हार गई थी थोड़ी सी। ये आखिर में तो आनकी कहने लगे हमारे शौहर कि तुम ऐसा करो, ये 2 नहीं लगवाओ, ये 2 कीमो छोड़ दो। डॉक्टर साहब से भी कहा कि 2 कीमो छोड़ दो।
मैंने कहा नहीं, जब मैं 6 लगवा सकती हूँ तो 2 भी लगवा सकती हूँ। तो वो मैंने लगवाई, दोनों कीमो मैंने इलाज करा और मुकम्मल इलाज करा। अब तक मेरा इलाज चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और ये भी बता देंगे जो भी कुछ पूछना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का टाइम लिया हमने इतना, और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। कभी भी कुछ ऐसा हो कि आपके जिस्म में कुछ अबनॉर्मल हो रहा हो, कुछ कमी बढ़ती हो रही हो, तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, जरूर डॉक्टर को दिखाएं। ये ना करें कि नहीं 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 जैसे हमने किया, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी जाके दिखाइए अपने आप को और डॉक्टर से मशवरा कीजिए और जो हो सके बेहतरीन से बेहतरीन इलाज अपना करवाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई पूछ तो नहीं रहा कुछ, कोई कमेंट्स? एक सेकंड नहीं, पूछो। अभी इंफॉर्मेटिव यार्ड से अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आयता? ह्यूज शाउट आउट टू इंफॉर्मेटिव यार्ड, जाके प्लीज उनको सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। हम छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, बहुत मजा आता है उनकी वीडियोस देखने में। ओके, और देखो कोई कमेंट्स। और कोई अगर कॉल करना चाहता है तो कॉल भी कर सकता है। If anybody wants to call, you're most welcome. With regard to cancer awareness, आज ये पहला मौका है कि उरूज भी आ गई है और नानी भी आ गई है और सारा भी आ गई और मनाल भी है और वो खुलूद भी, सब आ गए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। आपको अल्लाह सेहत अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं कॉल करना चाहता हूँ। जी कॉल करें फैसल भाई। ओके, एक मिनट, क्या कॉल है पहले देखते हैं। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। आपकी जो बहन, मतलब आपकी जो वाइफ हैं, उनका मैंने सुना है, तो खैर सुना तो पहले भी था, फर्स्ट टाइम उन्होंने जब आई हैं, बात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से आप लोगों को दोबारा से एक जिंदगी नवाजी है। तो इनकी बात सुन के मुझे तो अपनी अम्मी का भी जहन में आ गया। मेरी अम्मी का भी इसी तरीके से, उनका तो खैर ब्रेस्ट का नहीं था, उनके इंटेस्टाइन का था, और उनका भी जो इलाज है वो दुबई में गालबन हुआ था। तो ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी को भी जो है वो शिफा बख्शी, और अब अम्मी जो है हमारे साथ होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल एक अच्छी सी जिंदगी गुजार रही हैं। तो उनको शुक्रिया भी कहना था, एक तो वो आए हैं और उन्होंने अपनी ये चीज शेयर की, और बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए, और आप लोग हमें भी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी दे। अपने बच्चों में आप लोग अपने बच्चों की खुशियां देखें, और जिस तरीके से आकिल भाई आप ये लोगों तक अवेयरनेस जो है वो डिफरेंट तरीकों से, इस्लामी हो गई, सोशल हो गई, अब मतलब बीमारियों से रिलेटेड भी जो आप कर रहे हैं खिदमत, अल्लाह ताला इन सबको कबूल अता फरमाए, और हम लोगों के साथ आप लोगों को कनेक्शन आप लोगों का इसी तरह रखे, मजबूत रखे, आमीन। तो ये है कि thanks for coming online and sharing your views and your whatever you went through. Thanks a lot. Thank you auntie for calling. Okay जी, thank जी you very much. शुक्रिया अमीना। मेरी बेटी भी आ गई है नवाल, अगर आप उससे बात करना चाहें तो। हाँ जी, ये आपकी बेटी है जो शेर पढ़ती है? नहीं, वो मेरी नवासी है। मैं उनकी अम्मी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटी है आपकी? जी, नहीं अच्छा लगे आपको भी बेटा, आप भी इस तरह अच्छा है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप भी अपने बनाओ, और इस तरह लड़कियों को जो है ना, ये न्यू यूथ को भी चीजें सिखाना जाने, ये भी बड़ा आज का जो एक टास्क है, और आप भी करो। और अल्लाह ताला डॉक्टर सुहेल फातिमा, ऑफ कोर्स यस यू कैन कॉल डॉक्टर सुहेल फातिमा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अमीना, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर सुहेल प्लीज कॉल। आप डॉक्टर सुहेल फातिमा फ्रॉम दिल्ली आई बिलीव, आप कॉल कर लें डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर सुहेल
इस वक्त हमारा पूरा परिवार ऑलमोस्ट आ गया है. ओके, लिख दो उनको, कहना प्लीज कॉल डॉक्टर सुनील, यू कैन कॉल अस. Oh wow, I don't know. आ गया. हाँ. Suhail, मैं करता हूँ तो actually she is calling on my other number. पकड़ना नहीं. जब तक आप कुछ करी नहीं रुक. सूर्य अली को शेयर सुना. Okay, she is here. जी जनाब. एक सेकंड. Now. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बहन, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. एक्चुअली मैं बहुत देर से ज्वाइन कर पाई, कुछ गेस्ट घर में थे, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक जो मुशाहिदात थे आपकी एहलिया के शायद वो शेयर हुए हैं. जी जी. तो मुझे लगा कि अगर इस सिलसिले में कभी भी मेरी जरूरत है और मैं बहनों को जो है बता पाऊँ कि कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं और किस तरह से जो है इसमें 100% ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो मुझे अच्छा लगता है. लेकिन मैं बहुत लेट ज्वाइन किया. आई थिंक योर टाइम इज जस्ट गोइंग टू. जी आप अभी भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अभी भी आप कुछ बताइए हमारे ये बेटी है मेरी नवाल viewers आकिल. को. नवाल आकिल इज जी. कुछ आप कोई थोड़ी सी टिप्स बता दें लेडीज को कि जो उसमें उनको फायदा हो सके इंशाल्लाह, बिकॉज दिस इज द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, सो वी आर हैविंग सो मेनी प्रोग्राम्स ऑल अराउंड, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने सोचा इसके बारे में बात हो जाए ना. एक ही क्योंकि एक टैबू सा है हमारी सोसाइटी में इस बारे में बात करना, या इस चीज का जिक्र करना भी बहुत ही ऑड समझा जाता है. घरों में नाम लेना, आपको पता ही कितना वो समझते हैं सब इसको. तो बिल्कुल बिल्कुल. जी, एक तो सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इसको जो है मायूब समझा जाता है. तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इसको बिल्कुल मायूब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो 10 अगर लम्स होते हैं, जो कैंसर होता है, उसमें से 9 के बारे में खुद पेशेंट आकर बताती है. और अगर वो 9 के बारे में आकर बताती है तो जितनी अर्ली स्टेज में हम इसे पता लगा लेते हैं, 100% प्रिवेंटेबल है. क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है कि इसको अगर हम निकाल भी दें तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है हमारी लाइफ पर नहीं पड़ता है. तो पहली बात तो ये है कि इसमें ना तो कोताही करनी चाहिए और ना ही जो है इसको कोई शर्म का ये कोई बाइस है. तो पहली बात तो ये आपने बहुत सही कही कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. दूसरी बात जल्दी से मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कैंसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि वर्ल्ड में फीमेल जो है सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी रेट है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से है. और फॉर्चुनेटली दिस इज द ऑर्गन जिसमें अगर हमें जल्दी पता चल जाता है तो 100% प्रिवेंशन हो सकती है. तो पहली बात तो ये है कि हम ऐसी कौन सी तदाबीर करें से हम इस कैंसर के बारे में, मूजी मर्द के बारे में अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं. तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं. पहला तरीका ये होता है कि उन चीजों से बचें जिन चीजों से ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नंबर 1. नंबर 2, हम ये पता कर सकें कि हम किस ग्रुप में आते हैं, हम हाई रिस्क ग्रुप में हैं या हम हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है, सिर्फ हम नॉर्मली ऑब्जर्वेशन में अपने आप को रख सकते हैं. तो इसमें अगर हम पहली बात देखें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम हाई रिस्क ग्रुप में हैं कि नहीं. तो मोटे तौर पर जल्दी अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये है जिनको ओबेसिटी होती है
जिनको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जिनको ब्लड शुगर ज्यादा होता है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को हाई रिस्क ग्रुप की एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी के साथ एडिशनली अगर उनकी मदर को या सिस्टर को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को कभी कैंसर हुआ है ब्रेस्ट का या फिर यूट्रस का, तो वो लोग अपने आप को हाई रिस्क ग्रुप में डाल सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके बच्चे नहीं होते और अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, तो वो लोग भी अपने आप को हाई रिस्क ग्रुप में शामिल कर सकती हैं। तो जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो जो कैंसर है जो एक लंप की तरह जाहिर होता है जो हम पता लगा सकते हैं, तो लेडी अपने आप अपने पेस्तानों का या सद्दियान का जो है वो मुआयना कर सकती है, जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। तो यानी पेशेंट अपने आप से, सब्जेक्ट फीमेल अपने आप से अपने ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर जो है वो पता कर सके। तो उसके लिए तरीका ये है कि 20 साल की उम्र के बाद से लेकर और खास तौर से 40 साल के बाद तो बहुत हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो उनको अपने ब्रेस्ट को टटोलना चाहिए। मंथली बेसिस पर उनको अपने टोटल दोनों ब्रेस्ट को, टोटल एरिया को इंक्लूडिंग द आर्म पिट जो है उसे दबा के देखना चाहिए। और जब वो दबाकर देखती रहेंगी हर महीने तो कोई भी चेंज आने पर उनको बहुत आसानी से महसूस हो जाएगा। और ये ब्रेस्ट को महसूस कब करना है? महसूस करना है जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। पीरियड खत्म होने के फौरन बाद ब्रेस्ट की जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है, इसमें कोई लंप नहीं होता। अदरवाइज पीरियड आने से कुछ दिन पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट के अंदर जो है टेंडरनेस भी आ जाती है, लंपी भी लगता है, तो वो टाइम सही टाइम नहीं है सही इंफॉर्मेशन के लिए। तो एक तो ये है कि कोई शर्म नहीं करनी है, अपने ब्रेस्ट का मंथली बेसिस पर एग्जामिनेशन करना है ताकि आप अपने ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर जान सकें। जहां कोई आपको चेंज लगता है इमीडिएटली कंसल्ट करें डॉक्टर को। या फिर ब्रेस्ट में से कोई अगर सिक्रीशंस निकल रही हैं, वो सिक्रीशंस अगर ब्लड है या स्टिकी डिस्चार्ज है, कोई भी डिस्चार्ज जो मिल्क के अलावा है, 99.9% मिल्क डिस्चार्ज जो है वो कैंसर की वजह से नहीं होता। तो अदर देन यानी नॉन मिल्की डिस्चार्ज को जरूर नोट करें। अगर वो किसी के भी ब्रेस्ट से निकलता है तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। तो इस सिलसिले में अगर आप कभी इसके बाद कोई सवाल है या और पूछना चाहें कि इसमें किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं, शायद बहुत शॉर्ट पीरियड में मैं इतना ही बता सकती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बताया ये भी बहुत है इस वक्त, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो नोइंग कि आप किस तरीके से रिस्क में आ सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स अगर हमें पता है तो हम लोग अपना ख्याल रखने का इनिशिएटिव ले सकते हैं। प्लस हमारी डाइट चेंज और अपना लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल बन गया है उस सब पे अगर हम नजर डालें तो वो सारी भी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। तो क्योंकि मैंने इससे शुरू में कहा कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है हाई रिस्क है। एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, खास तौर से जो जंक फूड के अंदर हम जो है फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैट जो कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज कि लैक्टोजेनिक जो है इसमें मिल्क के अंदर रहने वाले कुछ बैक्टीरिया के बारे में भी सोचा जाता है कि शायद ये हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन इस बात की तरफ भी है कि ये फैमिली प्रोपोजिशन जो है इसमें चेंज होती हैं और फैमिली हिस्ट्री इसमें मिलती है, कुछ ना कुछ जीन का भी इसके अंदर है। लेकिन इन जीन को म्यूटेशन की तरफ ले जाने के लिए ये कॉजेज एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से जंक फूड या सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, एतदाल से ज्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। इसीलिए ओबेसिटी जो है एक कॉज होता है, हाइपरटेंशन एक कॉज होता है इसका। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। मेरा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आकिल साहब की मिसेज बोल रही हूँ। असल में मेरी माँ को था ना पेट का, कहते थे कि पेट का कैंसर है, क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें तो पता नहीं कि वालदा मर गई थी फिर हमारी, तो मेरी अम्मी को था जी पेट का कैंसर। जी, तो हो सकता है मैंने उन्हीं से लिया हो।
جی اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو چونکہ جینز کے اندر ہوتا ہے، یہ جینیٹک ہوتا ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو کیری کر سکتی ہیں. لیکن میں نے وہی بتایا اس کینسر سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنی ارلی اسٹیج میں آپ کو اپنے چینجز پتا چلتے ہیں یہ پریونٹیبل ہوتا ہے. الحمدللہ آج کل ٹریٹمنٹ بھی اس طرح سے آ گئے ہیں، اس کے لیے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، اور بہت جلدی جو ہے صرف آپ کا کام اتنا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے سارے لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ان کو اپنے خاص طور سے بریسٹ کی بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے بریسٹ کا بولا ہے. جیسے باول ہیبٹ کی بات ہے تو باول ہیبٹ میں بھی کوئی چینج اگر ہوتا ہے تو آلویز نوٹ یور باول ہیبٹ. ان میں جب بھی کبھی کوئی چینج ہوتا ہے آلویز کنسلٹ یور ڈاکٹر. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا اور ہمارے ویورز کو گائیڈ کرا اس کے بارے میں. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کسی دن ڈیٹیل سیشن بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی ٹاپک پہ بھی آپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بہت ضروری ہے. یہ تو آپ نے جو قیمتی معلومات شیئر کی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ تو میرے خیال سے وہ ہر گھر تک پہنچنی چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو بڑے پیمانے پر ہم ایک پہلے سے ہی اس کے اعلانات کریں اور لوگوں کو بتا دیں تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ تر لوگ جڑ جائیں انشاءاللہ. بالکل، آئی لو ٹو ڈو دیٹ. انشاءاللہ میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گی. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے. شکریہ، آمین ثم آمین. اور میں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس جو ہے ہمارے دونوں پیروں میں فریکچر ہو گیا ہے، ہم گر گئے تھے، تو آج کل ریڈن ہے، اور ہمارے لیے دعاؤں میں. اچھا، یہ کب ہوا؟ آپ کب گری ڈاکٹر صاحبہ؟ تو اللہ آپ کو سلامت. تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہم کو. تو ہم اپنی پارکنگ میں سلپ کر گئے، سلپ بھی نہیں کیا، تھوڑا سا غلطی سے ہم گر گئے. اوکے، تو آپ نوال کا نمبر لینا چاہ رہی تھے نا، تو اتفاق آج یہ ہوا کہ نوال آپ سے بات بھی کر لی، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا نمبر بھی دے دوں گا تاکہ آپ رابطے میں رہیں. بالکل انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بھیا کی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تمام کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس مختصر سے سیشن پہ مختصر سی جو گفتگو ہم نے کی ہے کینسر اویئرنیس کیمپین میں، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا رول ہم نے نہیں ادا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کینسر اویئرنیس کیمپین میں بھی ہمارا ایک اہم رول ہو، اور کینسر کے بیماروں کے علاج کے لیے اور ان کو ذہنی طور پر اس بیماری سے لڑنے کے لیے تیار کرنے میں بھی ہمارا ایک کنٹریبیوشن یا ہمارا ایک سپورٹ ہونی چاہیے. آکی آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آکی بہت شکریہ آپ آئی ہیں. عامرہ عثمان ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. منال آپ کو پسند کرتی ہیں ماشاءاللہ. عامرہ بہت شکریہ. عامرہ عثمان. اور زینب، وعلیکم السلام زینب، آپ دیر سے آئی ہیں لیکن ریکارڈنگ آپ کے لیے یہ چینل پر محفوظ ہو گئی ہے، تو اس کو ضرور دیکھیے گا. خاص طور پر کینسر اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ میں پرانے اپنے بڑے چینل پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا. جتنے بھی لوگ یہاں پر مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سب نے چینل سبسکرائب کیا ہے؟ پلیز سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اور بھابھی آئیں گے؟ ابھی تو وہ لائیو تھی، آپ دیر سے آئی ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا. اچھا وہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.